Hello guys. Now we will discuss the classification of motors. Basically we will discuss the AC and DC drives in this lecture. So we will start with the first classification of motors. So we know that there are two types of motors, AC motors and DC motors. Okay. DC motors are, there are two main classes, brushed motors and brushless motors. Brush means carbon brushes, and these include series, shunt and compound motors. You have studied these in your electric machines course. The other type is brushless motor. In brushless motors we have stepper motor and reluctance motor. Okay. In the AC motors, there are two types of motors, synchronous and asynchronous, based on the speed of the motors. In the synchronous motors, we get the synchronous speed, which is 120 F over P, and there are two supplies in that motor, one for the stator and one for the rotor. Three phase for the stator and DC supply on the rotor. Whereas in the asynchronous motor, we just supply the three phase to the motor, and we get the speed a bit less than the synchronous speed, which is defined by the slip of the motor. Okay, these are known as induction motors, and there are two types of the induction motors, normally squirrel gauge and wound rotor. Most of the motors are squirrel gauge. I have also worked on the motors which are squirrel gauge motors, and wound rotor motors are the other kind of motors. So this was the classification of motors, and now we will discuss the working of a simple DC motor. In a simple DC motor, this is a PMDC motor, permanent magnet DC motor. We have an external magnetic field in which there is a coil. So the law is, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force, and this is determined by the Fleming's left hand rule. The first finger direction of field, central finger current, and the thumb will show the direction of force. Okay, so this is the battery, DC battery, and this is the carbon brush. Okay, and from this carbon brush we get we have a commutator. Okay, a commutator which keeps the direction of the current in the same direction, because of the to keep rotating the motor in the same way. So here we get the upwards force, and here on the right side we get the downward force through the Fleming's left hand rule. Like this is your Fleming's left hand rule. This will be, you can see that you can see my hand that the force upward, and the other one is the central finger is the direction of current, north to south, and so you can see that this is the Fleming's left hand rule. This force is downward, okay, and this force is upward. So you can see from my hand movement. So this is explained here. You can see this, the first finger direction of force, direction of field, central finger direction of current, and the thumb represents the direction of your force. So in this way, two forces act on the motor, and you can see that these forces are opposite, so these form a couple and the motor starts rotating. Okay, we need to keep the direction of current same, because to keep F upward, if the current is changed, if the direction is changed, then this force will become downward and the motor will not rotate smoothly. So therefore we need a commutator here, and this is the commutator. So you have studied all these things in your electric machine parts, and you can revise from here. Okay, now we will discuss your separately excited DC motor. In a separately excited DC motor, here we don't have any permanent magnet. So where do we get the external field? We will get the external field from the separate supply. So you can see that this is a separate supply, and this is your field winding, and this is your IF, the field current. This current basically produces a phi, which is the flux of your field, magnetic field, and this is your armature winding. Okay, this armature winding is basically rotating because of the applied voltage. So in a separately excited DC motors, field circuit is supplied from a separate constant voltage power supply. The field winding is used to excite the field flux. The armature current is supplied to the rotor wire brush and commutator for the mechanical work. Interaction of field flux and armature current in the rotor produces torque. And the other type is the self-excited DC motor, in which we don't supply the field excitation separately. यानी इसमें जो आप जिस सप्लाई से आर्मेचर चला रहे हो ना मोटर का, उसी से ही फील्ड वाइंडिंग भी जनरेट हो रही है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ एक्साइटेड. इसमें कौन सी टाइप्स होती हैं? DC सीरीज, DC शंट और DC कंपाउंड मोटर.
डीसी सीरीज मोटर में क्या होगा कि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है बोथ आर इन सीरीज। सो आपका जो IF और IA है वो सीरीज में होगा और इससे जो टार्क का रिलेशन निकलता है उसमें स्केयर हो जाता है, जिसकी वजह से दिस मोटर इज़ द हाईएस्ट टॉर्क मोटर एंड इट इज़ यूज्ड इन द ट्रैक्शन पर्पस। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि इसकी स्पीड जैसे लोड इस पर पड़ता है इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसकी स्पीड रेगुलेशन अच्छी नहीं है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इसके मुकाबले में दूसरी टाइप होती है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग है दोनों पैरेलल में होती हैं और इसमें ये होता है कि इसकी स्पीड, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसका टॉर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, इस मोटर का टॉर्क ज़्यादा नहीं है। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर बनाया गया जिसको कंपाउंड मोटर कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी मतलब सीरीज मोटर से इम्प्रूव्ड होती है, यानी उसकी स्पीड बेहतर होगी और शंट मोटर की तरह उसका टॉर्क भी कम नहीं होगा, शंट मोटर से उसका टॉर्क भी अच्छा होगा। तो यानी इन दोनों का इन बिटवीन एक कंपाउंड मोटर जो है वो बनी। तो ये आपके सामने सीरीज मोटर है। फील्ड वाइंडिंग्स कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिवली फ्यू टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर कॉइल। ये देखें अच्छा, the torque in the motor is proportional to the square of its armature current. The series motor provides the high starting torque. And the series motor provides high starting torque and is able to move very large shaft loads when it is first energized. If load is disconnected and no other load is connected to the motor, it can run fast enough to seriously damage itself. Never completely unload a series motor. ठीक है, सीरीज मोटर को आपने अनलोड नहीं करना, ये उसकी सेफ्टी है। अच्छा नेक्स्ट ये देखें शंट मोटर एंड शंट डीसी मोटर। द फील्ड वाइंडिंग्स ऑफ द स्टेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग्स। शंट डीसी मोटर कैन नॉट कैरी हाई करंट्स सिंस अ हैवी स्टार्टिंग लोड विल नीड अ हैवी स्टार्टिंग करंट। शंट मोटर शुड नेवर बी स्टार्टेड ऑन हैवी लोड। हैवी लोड पे इसको स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, दिस इज नॉट एप्रिशिएबल चेंज, देयर इज नॉट एप्रिशिएबल चेंज इन द स्पीड ऑफ द शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। ड्यू टू कॉन्स्टेंसी ऑफ देयर स्पीड शंट मोटर्स आर सूटेबल फॉर ड्राइविंग शाफ्टिंग मशीन टूल्स एंड लेथ्स। लेथ मशीन जहाँ पे आपने वो मतलब एक पीस बनाना होता है, पीस को अल्टर करना होता है, अगर आपकी मोटर की स्पीड ही वेरी कर रही है तो फिर उससे थिकनेस ख़राब हो जाएगी। जो आप जो भी चीज़ बनाएंगे लेथ के ऊपर, जो खरादिया मशीन होती है उसमें तो आपको कांस्टेंट मशीन, इस तरह प्रिंटिंग प्रेस है, कोई डिज़ाइन अगर बन रहे हैं आपके कपड़ों के ऊपर, वो मशीन का स्पीड फिर कांस्टेंट होनी चाहिए ना, ताकि डिज़ाइन एक जैसा बने। अगर आपकी डिज़ाइन स्पीड ही चेंज हो जा रही है तो फिर वो आपको जो कपड़े होंगे उसका डिज़ाइन वेरी कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, तो वहाँ पे सीरीज़ नहीं लगानी, वहाँ पे आपने शंट लगानी है। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब, ये इसकी है इनका कॉम्बिनेशन के जिसमें सीरीज़ पार्ट भी है और शंट पार्ट भी है। तो डीसी कंपाउंड मोटर इसको कहते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी सीरीज़ एंड शंट मोटर। दिस कॉम्बिनेशन प्रेजेंट्स अस द डबल advantage of having the torque characteristics of a series motor and the constant speed characteristic of a shunt motor in one compound wound motor. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल पे आते हैं क्विकली। स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर का हम कैसे करेंगे। डीसी मोटर में मेनली जो है, जैसे पीएम डीसी मोटर है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, उसमें मेन चीज़ वोल्टेज है। वोल्टेज कम करोगे स्पीड कम हो जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा करोगे स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये देखें पोटेंशियोमीटर वाला मेथड इसमें। अच्छा देखें, डीसी मोटर में जिसमें पीएम परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा, अगर परमानेंट मैग्नेट नहीं है फिर हमारे पास फील्ड से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी स्पीड को। फील्ड को कम करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उससे टॉर्क कम हो जाएगा, ये आगे हम डिस्कस करते हैं उसको। उसमें फिर इश्यूज ये आते हैं कि उस टॉर्क के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यानी दो मेथड होते हैं, एक फील्ड के थ्रू, दूसरा जो आर्मेचर का वोल्टेज है उसके थ्रू। ये दो मेथड है। और अगर पीएमडीसी है तो सिर्फ वोल्टेज जो आर्मेचर के हैं वो ज़्यादा करोगे आरपीएम बढ़ जाएंगे, कम करोगे आरपीएम कम हो जाएंगे। तो ये पोटेंशियो है। पोटेंशियो में आपको पता है कि आप वेरिएबल आउटपुट यहाँ वोल्टेज ले सकते हैं और इससे मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर वाला मेथड है। और दूसरा मेथड एक पीडब्ल्यूएम मेथड भी होता है, वो भी आपको पता है। ये पीडब्ल्यूएम इसी से मैंने भी इसी से समझी थी कि पीडब्ल्यूएम जो है ये मतलब पल्स विड्थ को बढ़ा देंगे तो स्पीड मोटर की बढ़ जाएगी। पल्स विड्थ को बेसिकली इसे एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बेसिकली चेंज हो रही होती है ना। जैसे आपका 12 वोल्ट की मोटर है, 12 वोल्ट पे 100% ड्यूटी साइकिल है तो 12 वोल्ट पूरे जा रहे हैं, मोटर फुल स्पीड पे चलेगी। और अगर उसका 50% ड्यूटी साइकिल है तो मोटर आपकी हाफ पे चलेगी, यानी आपकी समझो 6 वोल्ट पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपका 75% है तो 9 वोल्ट पे चली जाएगी, और अगर आप 25% तो 3 वोल्ट पे आ जाएगी। तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपका जो मोटर की स्पीड है वो भी वेरी करेगी। तो PWM इज अनदर मेथड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द DC मोटर। ओके,
अच्छा, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है इसने, ड्यूटी साइकिल वगैरह ये आपको मैंने बहुत मरतबा ऑलरेडी करवाया हुआ है, ये आपने देख लेना है। अच्छा जी, डीसी ड्राइव्स पे अब आते हैं ज़रा थोड़ी सी एडवांस ड्राइव्स। तो डीसी ड्राइव इज़ बेसिकली ए डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल सिस्टम दैट सप्लाइज द वोल्टेज टू द मोटर टू ऑपरेट एट डिजायर्ड स्पीड। तो ये सामने एक आपका जो डीसी ड्राइव है उसका एक इसमें शो कर रहा है जनाब, इसमें है ऑपरेटर कंट्रोल्स, यहाँ से उसका सेट पॉइंट है स्पीड का, स्पीड बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं ना हम, स्पीड भी है उसमें, टॉर्क भी इन बिटवीन आ रहा है, लेकिन बेसिकली तो यहाँ स्पीड है। तो उसकी देखें फीडबैक क्या आ रही है, ये स्पीड सेंसर वाली ये एक्सटर्नल फीडबैक है, ठीक है, कि एक्सटर्नल फीडबैक आ रही है कि स्पीड कितनी है, टैकोमीटर लगाया हुआ है, टैकोमीटर जो स्पीड बताता है आपका इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अच्छा, उसके बाद एरर सिग्नल है, फिर एक इनर लूप भी है, मतलब इसमें दो लूप हैं, एक इनर लूप है और एक आउटर लूप है। इनर लूप है जिसमें ये ड्राइव से सिग्नल जा रहा है, इंटरनल फीडबैक सिग्नल है, उसके बाद डीसी ड्राइव को जाता है, फिर मोटर के साथ स्पीड उसकी जो है उसको मेजर करके वो फिर अपना जो इसको कहते हैं ना एरर को ज़ीरो करने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी अपने सेट पॉइंट पे। दूसरा इसके साथ ट्रांसमिशन कनेक्टर जो भी इसके साथ जोड़ा हुआ है आपने, कुछ चीज़ जो भी इसके साथ सिस्टम लगाया हुआ है, और उससे ड्रिवन मशीन है। तो ये एक बेसिक सा एक सर्किट है इसका। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि डीसी ड्राइव है लेकिन अगर आपके पास सप्लाई एसी है, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, उसको आप रेक्टिफाई करोगे, और रेक्टिफाई फिर आप कंट्रोल रेक्टिफिकेशन करके भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल रेक्टिफिकेशन, जिससे आप उसका जो फेज़ एंगल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा था, वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अल्फ़ा को ट्रिगर को अगर आप पहले ट्रिगर करा लेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज आगे जाएंगे, अगर आप देर से ट्रिगर कराएंगे, ठीक है, तो कम वोल्टेज आगे जाएंगे, तो उससे भी आप अपनी स्पीड कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था फील्ड करंट का भी इसमें तरीका होता है कि फील्ड करंट जो होता है ना, वो कहता है स्पीड ऑफ द शंट मोटर इज कंट्रोल्ड प्राइमरीली बाय वेरिंग द वोल्टेज एट द आर्मेचर एंड कीपिंग द फील्ड वोल्टेज कांस्टेंट। When the maximum rated armature and field voltages are applied to the motor, it runs at base speed, जो regulated जो उसकी है rated speed है। It is possible to further control the motor speed by changing the field current, called the field current speed control as per the formula। ये n is equal to v minus IR over k phi, ये फार्मूला होता है कि n RPM इज इक्वल टू v माइनस IR इज इक्वल टू ओवर k phi, ये आपने पढ़ा होना चाहिए वैसे आई सपोज। n इज़ द स्पीड, k इज़ द कांस्टेंट, phi इज़ द फील्ड फ्लक्स जो कि बेसिकली प्रोपोर्शनल है आपके फील्ड करंट के, और VIR बेसिकली जो आपके आर्मेचर है, आर्मेचर आपकी जो मेन कॉइल है, आर्मेचर और फील्ड कॉइल, ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, आर्मेचर और फील्ड कॉइल, ओके। ये आपकी आर्मेचर जो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इससे आप फाई जो है, फाई यानी IF को अगर आप कम करोगे, तो डिनोमिनेटर में अगर एक चीज़ अगर आप कम करोगे तो उसका इफेक्ट क्या आता है, चीज़ बढ़ जाती है। तो अगर आप 5 को कम करोगे तो आपकी n बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इसके इश्यूज भी आते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द मोटर स्पीड अप टू 5 टाइम्स, 5 गुना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो मोटर की स्पीड को ऑफ द बेस स्पीड बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट। हाउएवर वीकनिंग द फील्ड, यानी फील्ड वीकनिंग कर रहे हो ना आप, करंट को कम करके क्या कर रहे हो, फील्ड वीक कर रहे हो, जो नॉर्थ और साउथ पोल एक्सटर्नल फील्ड उसको कम कर रहे हो ना। तो however weakening the field by reducing the field voltage also reduces the motor torque कम हो जाएगा। Rheostat or an SCR bridge can be used to vary the field current। DC drive with this capability are frequently called as voltage drives and field drives, यानी voltage drives और field drives, voltage drives जिसमें वोल्टेज से कंट्रोलिंग कर रहे हैं, और field drive जिसमें आप फील्ड करंट से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये DC drives जो है इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं AC मोटर्स के ऊपर। AC मोटर्स की हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये मशीन्स का आपने पढ़ा होना चाहिए। इंडक्शन मोटर्स जो हैं ये बेसिकली रोटेटिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसको 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और रोटर एक बेसिकली सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि शॉर्टेड होता है, और उसमें इंडक्शन होती है, इंड्यूस होता है वोल्टेज, और पाथ चूँकि क्लोज होता है तो वो करंट में चेंज होता है, और करंट में चेंज होता है तो वो टॉर्क पैदा करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो वाली चीज़, तो उससे वो मोटर आपकी घूमना शुरू कर देती है। तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो AC मोटर्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन मैनी एप्लीकेशंस। हमारे पास जो प्लांट में 99% की मोटर्स थी, AC मोटर्स इन यूज़ हो रही थी, टर्बाइंस के अंदर, जनरेटर के अंदर, हर जगह ये इंडक्शन मोटर वेरियस साइज़ के अंदर, ओके। जैसे यहाँ पे आपके सामने ये वाइंडर एक मशीन है, उसमें यूज़ हो रही है, पंपिंग में लगी हुई है, फिर कन्वेयर बेल्ट जो है उसमें लगी हुई है, ठीक है। अब AC मोटर्स, ये सीमेंस का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जिससे मैं आपको जो है ये करवा रहा हूँ, ये बड़ा इसमें ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। AC मोटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर जनरली रेटेड इन हॉर्स पावर में होती है, बट मोटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन मैनी अदर कंट्रीज जनरेटेड इन किलोवाट्स। तो कुछ मोटर आपको हॉर्स पावर में भी मिलेंगी और कुछ किलोवाट, तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि
ये अगर हॉर्स पावर में तो कितने किलोवाट की है, और अगर किलोवाट में तो कितने हॉर्स पावर की है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पावर इन किलोवाट इज 0.746 पावर इन हॉर्स पावर। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो बेसिकली वो 7.46 किलोवाट की है। 10 हॉर्स पावर की मोटर आपकी 7.46 किलोवाट की है। और हम जब इंडस्ट्री में थे तो हम ना मुख्तलिफ रूल्स होते थे, हमारे रूल ऑफ थंब होते थे, मोटर की टेस्टिंग होती थी पूरा। हम क्या करते थे, मोटर उतारी, मोटर को पहले नो लोड पे रन करते थे, उसका करंट चेक करते थे, मोटर कितना ड्रॉ कर रही है। मोटर के बेरिंग्स अगर हमने चेंज किए, बेरिंग चेंज करने के बाद दोबारा बंद किया उसको, फिर मोटर का मैगर टेस्ट करते थे, मैगर के शॉर्ट तो नहीं हो रही, मैगरिंग करते थे, फिर उसके बाद उसको चलाते थे मोटर को नो लोड पे। तो नो लोड पे जितना रेटेड करंट उसका होता था, फर्ज करें 10 एम्पेयर की मोटर है तो उसका 1/3 वो लेनी चाहिए, वो हम नोट करते थे, मतलब 3.34 एम्पेयर तकरीबन 1/3 आ रहा होता था। और फिर ये भी एक रूल ऑफ थंब होता था कि अगर इतने किलोवाट की मोटर है तो अंदाजन इतने एम्पेयर लेगी, ठीक है। और इतने एम्पेयर लेगी तो हमने कितने कितने की केबल डालनी है, कितने mm² की केबल डालनी है। तो ये सारा रूल ऑफ थंब हमें वहाँ पे क्लियर होता था प्लांट पे, ये इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है। और वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी होता था क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ ही आया होता था। तो किलोवाट से मुझे, मेरे जहन में शायद मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि किलोवाट का डबल हम रखते थे शायद, कि अगर 10 किलोवाट की मोटर तो 20 एम्पेयर लेगी, ठीक है, 20 एम्पेयर लेगी। तो ब्रेकर कितने का लगाना है, डबल 40 का ब्रेकर लगाना है। अच्छा, और डबल ब्रेकर लगाना है। और तार जो है वो मतलब 20 एम्पेयर की तार है, तो 20 को मेरे ख्याल 4 पे हम शायद तकसीम करते थे, पता नहीं 6 पे करते थे। तो इस तरह से 4 mm² की या 6 mm² की केबल डालनी है। तो ये पूरा हमें क्लियर होता था कि हमने एक मोटर चलानी है तो केबल कितने की डालनी है, फिर इसमें जनाब ब्रेकर कितने का लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्लांट में जाओगे, करोगे मेंटेनेंस वगैरह में काम, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ जाके। अच्छा जी, अब देखते हैं पावर इन हॉर्स पावर में कैसे निकालोगे 1.34 ज़रा पावर इन किलोवाट। अब जैसे किलोवाट में 10 किलोवाट की मोटर है तो हॉर्स पावर में ज़रा ज़्यादा की होगी, कितने की होगी, 13.4 आपकी 13.4 हॉर्स पावर की होगी मोटर, अगर वो 10 किलोवाट की है तो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है इसकी। और 3 फेज मोटर है, दैट दिस टाइप ऑफ द मोटर है 3 पार्ट्स, रोटर होता है, स्टेटर होता है और इनक्लोयर होता है। रोटर पार्ट की आपकी जो शाफ्ट है इसको रोटर पार्ट कहते हैं, रोटेट करता है ना रोटर। और ऊपर पार्ट स्टेशनरी होता है उसको कहते हैं स्टेटर, ठीक है। और इनक्लोयर, ये इनक्लोयर ये बेसिकली, ठीक है, ये जो इस पे इस तरह की स्ट्रक्चर बेसिकली ये इसको कूल करने के लिए होती है, फिन्स बनाई होती है ना ताकि कूलिंग हो, इसमें हवा लगे और ये जो गर्म होती है तो उससे कूलिंग। ट्रांसफार्मर्स का भी देखा होगा आपने, इस तरह से अजीब सी स्ट्रक्चर होती है उसमें, वो कूलिंग के लिए होती है ताकि एयर से कांटेक्ट ज़्यादा हो। अच्छा जी, फिर ये उसके अंदर दिखा रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल एक्चुअल ऐसी होती है मोटर, ये वाइंडिंग होती है 3 फेस, ठीक है। और ये इसमें स्लॉट्स होती हैं, फिर उसके ये वार्निश हम करते होते थे, इसको वार्निश इस पर फेरते थे बाद में। अच्छा जी, उसके बाद अंदर से बेसिकली ये होता है कि 3 कॉइल्स होती हैं, आपको पता है कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 120 डिग्री के ऊपर। ये नोट करें, A1 A2, ठीक है, इस तरह से, और फिर B1 B2, देखें B1 और B2, इसी तरीके से आगे C1 और C2, ठीक है। अच्छा, अब ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से रोटेट करती है। 3 फेज हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर, तो ये इस मोटर ने रोटेट करना है। तो ये डायग्राम इसको एक्सप्लेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, जैसे आपने 3 फेज बना लिया, अब आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो इस पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, आई सपोज कि ये आपने किया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन्स में। तो आई ए इसमें देखें पॉजिटिव है फेज, ये भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव फेज है और सी भी नेगेटिव फेज है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए है उसमें क्रॉस है इनटू दी प्लेन और डॉट है आउट ऑफ दी प्लेन, ठीक है। यहाँ पे क्या लगे, क्रॉस और डॉट। और बी और सी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, डॉट लगेगा बी पे, देखें देखें बी पे डॉट लगेगा और बी डैश पे क्रॉस लगेगा। और सी में भी देखें कि सी पे भी डॉट लगेगा, सी डैश पे क्रॉस लगेगा। तो ये आपकी इस इंस्टेंट पे आपकी जो वाइंडिंग के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है ये है। अब ये देखें सारे जो डॉट हैं ऊपर वाले 3, उनको कंबाइन कर दें आप, ठीक है। और ये जो सारे आपके हैं ऊपर वाले क्रॉस और नीचे वाले डॉट, इनको कंबाइन कर दें। तो इससे देखें कि जो अब आप राइट हैंड रूल लगाएं इसमें इनटू द प्लेन, तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बन रही है वो इसकी जो वेक्टर की फील्ड की वो ये बन रही है ऐसे, ठीक है, लेफ्ट को। अच्छा, अब अगले इंस्टेंट पे आ जाएं, ये 2 नंबर वाला इंस्टेंट है, इसमें देखें आपका ए फेज पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, लेकिन आपका सी फेज क्या है, नेगेटिव है। तो ए पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये क्रॉस है, ये डॉट है, बी यहाँ पे क्रॉस है, ये डॉट है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है।
और सी आपका नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसमें यहाँ डॉट है सी में और यहाँ क्रॉस है। तो आप इन सारे जो क्रॉस क्रॉस वाले इनको कंबाइन कर लें और इनको कंबाइन कर लें तो अब आपकी डायरेक्शन ये बन गई। इसी तरह से यहाँ निकाल लें, इसी तरह यहाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे जैसे आपकी 3 फेस है उसके जैसे जैसे आप राइट डायरेक्शन में रिवर्स कर रहे हैं तो आपकी मोटर स्पिन कर रही है, इस तरह से घूम रही है, रोटेट कर रही है, यूं 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 यूं। तो आप देखें कि 360 डिग्री पूरी रोटेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। तो इसकी ये जो स्पीड है, जो रोटेशनल स्पीड है आरपीएम है, उसका फार्मूला क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू 120 f ओवर पी। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, पी इज द नंबर ऑफ पोल्स। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में जो फ्रीक्वेंसी ली है वो 60 हर्ट्ज ली हुई है, बिकॉज ये यूएस का डॉक्यूमेंट है। यूएस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 60 हर्ट्ज, लेकिन पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है। तो आप अगर इस पे पुट कर दें, ये टेबल अपना भी बना लें, आप 2 4 6 8 10 का टेबल बना लें तो आपके पास आ जाएगा 3600 की जगह आपके पास 3000 आरपीएम आएगा। ठीक है, 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 750 आरपीएम, इस तरह से आपके पास जो है ना वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 120 एफ ओवर पी, 120 इंटू फ्रिक्वेंसी ओवर पी। पी इज़ द नंबर ऑफ पोल्स, 2 पोल है, 4 पोल है आपके, अच्छा हाँ 5 नहीं हो सकता, पोल हमेशा इवन होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे और 10 होंगे। ठीक है, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारा क्या है, स्पीड कंट्रोल ऑफ द एसी मोटर। एसी मोटर की जो अब तक मतलब ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा सा आपका फ्रेश किया है, जो कि आपने इलेक्ट्रिक मशीन्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। अब इसमें देखें 120 एफ ओवर पी, ये आपकी थी रिवॉल्विंग जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये उसकी स्पीड थी। रोटर की जो स्पीड थी इंडक्शन मोटर में इतनी नहीं थी, इससे कम थी, तकरीबन अगर 1500 आरपीएम तकरीबन 1470 को होती है कुछ, वो स्लिप होती है बेसिकली ना, 1 माइनस एस उसमें करना होता है, स्लिप। स्लिप यानी 1 माइनस, अगर 2% है स्लिप तो 1 माइनस एस करोगे तो 0.98 से ज़रब दो। ठीक है, अगर 4% स्लिप है तो 0.96 से ज़रब दो, जो भी आपकी जो एनएस आ रही है। ठीक है, तो वो स्लिप होती है उसमें। तो उस फार्मूले में ज़रा देखें कि 120 एफ ओवर पी। अब आपके पास 2 मेथड हैं स्पीड को चेंज करने के, एक है पोल चेंज कर दें, पोल चेंज करें ना, 2 करते हैं, 4 करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, तो पोल चेंजर आपको सेटअप लगाना पड़ेगा। वो भी आई थिंक होता है कुछ मोटर्स में, जो मुझे याद पड़ रहा है शायद होता है कुछ मोटर्स में, लेकिन मैंने देखा नहीं है इंडस्ट्री में, और काफ़ी कम्बरसम है, मतलब उसमें काफ़ी हेक्टिक, उसमें मेंटेनेंस अच्छी खासी निकलेगी, उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस और उसकी डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसकी। दूसरा सिंपल सा मेथड है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो। फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है उसको 25 कर दोगे तो हाफ हो जाएगी स्पीड। सही है, मतलब अब 0 से 50 हर्ट्ज की गेम है, जिसको आपने 0 to 100% वेरी करना है। 75% जो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में 25%, 50%, 75% और 50%, ये वो गेम है अब सारी, अब उसको हमने चेंज करना है उस। अच्छा, मोटर में ये ज़हन में रखिएगा, आगे वो पॉइंट भी आएगा कि ड्राइव में सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करनी होती, स्पीड कम करनी है, हमने कहा सर फ्रीक्वेंसी कम कर दो, नो, साथ में वोल्टेज भी कम करना है, क्योंकि इसमें एक होती है वी ओवर एफ रेशियो, जो बेसिकली फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो डिस्टर्ब हो गई, यानी वोल्टेज चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो वी ओवर एफ आपका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, वोल्टेज सेम रखा तो वी ओवर एफ डबल हो जाएगा, मोटर में ओवर फ्लक्सिंग हो जाएगी। आपका जो ट्रांसफार्मर है, प्रोटेक्शन जो है ट्रांसफार्मर्स की प्रोटेक्शन होती है ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन, जो फ्लक्स को देख रही होती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि फ्लक्स पे तो काम कर रहा है ट्रांसफार्मर, कैसे काम कर रहा है, कर रही फ्लक्स पे रहा है, मैग्नेटिकली काम कर रहा है ना, तो फ्लक्स पे काम कर रहा है, तो फ्लक्स ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, और जितना चाहिए उससे कम भी ना हो। ठीक है, तो फ्लक्स यानी अंडर फ्लक्स ओवर फ्लक्स, ये 2 चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ फ्रिक्वेंसी को ही चेंज नहीं करना, साथ में वोल्टेज को भी चेंज करना है। ठीक है, तो वी ओवर एफ रेशो होती है जिसको मेंटेन रखना होता है। ठीक है, फिर ड्राइव्स में और भी एडवांस है, इसमें स्केलर कंट्रोल होता है, वेक्टर कंट्रोल होता है, वेक्टर कंट्रोल के अंदर फिर इसमें सेंसर लेस कंट्रोल भी होता है, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल फिर इसमें वो लेकिन वो ज़रा एडवांस चला जाएगा, एमएस या आप एमएस पीएचडी में वो करोगे, कंट्रोल ऑफ मशीन ड्राइव्स, तो वो उसमें फिर आप उसकी डेप्थ में जाकर देखोगे कि कितनी डेप्थ है इसकी। तो यहाँ पे तो हम जस्ट मोटा मोटा देखेंगे जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएस के लेवल पे आपके लिए। तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडजस्टेबल स्पीड, अच्छा इसको हम VFD भी कहते हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी कहते हैं, ASD,
और VFD ASD और वेरिएबल स्पीड ड्राइव, VSD भी कहते हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। तो आपको किसी भी नाम से आप क्वेश्चन वगैरह आ सकता है, तो आप उससे मतलब यही है, ठीक है। तो that is used to control the speed of the AC motor. In order to control the motor's rotational speed, a variable frequency drive controls the frequency of electric power supplied to it. अब ये आप देखें कि ये आपकी जनाब L1, L2 और L3 है, इसमें अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी हुई है, उसमें मैंने ये सर्किट आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। इसमें पहला पार्ट क्या है जी, रेक्टिफायर्स का। पहला पार्ट क्या है, रेक्टिफिकेशन। इसको मैंने इस तरह आपको समझाया था कि देखिए एक स्टिफ आपके पास वापडा की पावर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसको मोल्ड कर लो। यानी जिस तरह आपने एक नई शेप बनानी है किसी चीज़ की, आप उसको मोल्ड कर लो, पिघला लो, पिघला के जिस तरह की बनानी बना लो, ठीक है। तो जो AC सप्लाई है आपकी, उसको आप क्या करो, DC बना लो। अब DC के बाद AC अपनी मर्जी की बना लो, ठीक है। तो AC पहले रेक्टिफायर लगा हुआ है, कंट्रोल रेक्टिफायर, ये कंट्रोल्ड है, क्योंकि इसमें आप देखें डायोड के साथ एक और भी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है जो शोज इट इज़ अ थायरिस्टर, ठीक है। तो कंट्रोल रेक्टिफायर है, उसके बाद आगे DC लिंक और कैपेसिटर है, बेसिकली ये फिल्टर है आपका, और उसके बाद इन्वर्टर लगा हुआ है। और इस इन्वर्टर के अंदर BJT, MOSFET और IGBT में से कौन सा यूज़ हो रहा होता है, IGBT यूज़ होता है इसके अंदर, IGBT ज़्यादा यूज़ होता है। BJT और MOSFET इसमें कम यूज़ होते हैं। जो ड्राइव्स होती हैं ना स्पेशली, उसमें एक मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है, और मीडियम फ्रिक्वेंसी में आपको पता है कि फिर आप प्रेफर अपने IGBT को करते हो फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, ठीक है। उसका कंट्रोल भी आसान होता है, ठीक है। BJT और MOSFET में इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आप रिवाइज़ कर लें अगर आपको थोड़ा सा वो भूल गया तो। अच्छा, उसके बाद आता है 3 फेज़ मोटर साथ लगी हुई है, ठीक है। तो ये जनाब आपका एक सर्किट है जो कि इसके अंदर वेरिएबल स्पीड ड्राइव के अंदर या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के अंदर होता है। और ये माइक्रो मास्टर की और मास्टर ड्राइव की ये है फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। थराइस्टर, ये जो आपके IGBT, ये देखो सिंबल क्या है, IGBT, ये IGBT का सिंबल होता है, ठीक है। इसमें आप देखें कि गेट इंसुलेटेड है और आगे BJT वाली आउटपुट है और MOSFET वाली इनपुट है, ठीक है। ये IGBT। अच्छा, मोटर ब्रेकिंग की हम बात करेंगे कि मोटर को ब्रेक लगाना। ब्रेकिंग ये भी बड़ी एक मॉडर्न बात है, एक होती है डायनामिक ब्रेकिंग, एक दूसरी होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी होती है मोटर की, उसको आपने डिसिपेट करना होता है ना, उसको स्लो डाउन करने के लिए, वो रेजिस्टेंस लगा के डिसिपेट कर देते हैं, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है, रेजिस्टेंस में आप ज़ाया कर रहे हैं। दूसरा मेथड होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कि जो एनर्जी है उसको वापस सोर्स को भेज दो। तो ड्राइव्स के अंदर ये भी फीचर होता है कि उसमें उनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है, कि वो जो जब आप रोक रहे होते हैं मोटर को, स्लो डाउन कर रहे होते हैं, तो जो एनर्जी उससे पैदा होती है वो एनर्जी आपकी वापस सोर्स को चली जाती है, ठीक है। तो some industrial applications require that a rotating mechanism be stopped quickly. However, because of inertia, it may be difficult to stop a mechanism abruptly. Since DC motors are used as prime mover for certain machines, certain types of motor braking techniques have been used. Two popular methods are dynamic braking and regenerative braking. Dynamic braking में देखेंगे, dynamic braking uses a resistor to absorb the kinetic energy from the rotating armature and the load when it is connected. अब ये देखो, ये सर्किट है आपका, ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट आ रही है, ये DC मोटर कंट्रोलिंग में यूज़ हो रहा है, और ये इसका स्टार्ट स्टॉप है, देखो लैचिंग लगा हुआ है ना। अच्छा, शुरू में जब स्टॉप है, और शुरू में क्या होगा, ये जो CR है, ये कंट्रोल रिले कह लें आप इसको, कॉन्टेक्टर है या रिले है जो भी है, तो ये एनर्जाइज नहीं है। अगर एनर्जाइज नहीं है तो इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा वो क्लोज रहेगा और ओपन रहेगा, ठीक है। तो उस सूरत में आप देखें अगर ये क्लोज है तो आर्मेचर से क्या कनेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस, तो ये डिसिपेशन कर देगी, यानी डिसिपेट करेगी। और अगर आप स्टार्ट प्रेस कर दोगे बटन को तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, तो उसके बाद ये आपकी जो रेजिस्टेंस है ये इससे यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको मैं पढ़ता हूँ। डायनेमिक ब्रेकिंग यूजेज अ रेजिस्टर टू ऑब्जॉर्ब द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द रोटेटिंग आर्मेचर एंड द लोड टू विच इट इज कनेक्टेड। ये देखें, ये रेजिस्टेंस है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आर फास्टर इट स्लोज डाउन। जाहिर है जितने रेजिस्टेंस कम होगी उतना ज़्यादा वो करंट ड्रॉ करेगी, जितना करंट ड्रॉ करेगी, करंट बेसिकली एनर्जी शो कर रहा है आपके आर्मेचर की, जल्दी उसको डिसिपेट कर देगा। और व्हेन स्टार्ट बटन इज क्लोज्ड, नॉर्मल ऑपरेशन, यानी आपने स्टार्ट बटन को दबा के रखना है, जब वो दबा रहेगा तो ये ओपन होगी ना रेजिस्टेंस, तो ये नॉर्मल चल रही होगी मोटर।
लेकिन अगर आपने इसको रोकना है, बंद करना है, तो स्टॉप बटन को आप ओपन कर दें, जिससे ये क्या हो जाएगा आपका CR ये डी एनर्जाइज हो जाएगी और ये रिले, ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। तो उससे आपकी जो करंट है वो इधर फिर डिसिपेट होना शुरू हो जाएगा और आपकी मोटर क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो जल्दी स्लो डाउन होगी, रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो देर से स्लो डाउन होगी। अच्छा, दूसरा मेथड आता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। ये बनाया भी था हमारे यहाँ पे जो एक था बिलाल कादरी, आपका जो सीनियर है, उसने गाड़ी बनाई थी इधर ना, सोलर कार, उसमें उन्होंने ये लगाया हुआ था, मुझे दिखा रहे थे, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी उसने लगाया हुआ था कि जिसमें अच्छा, तो इन दिस पावर फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी इज रिटर्न टू दी पावर सप्लाई। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस में जो ज़ाया हो रही थी, अब वो सोर्स को क्या कर रही है, वापस जा रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये एक एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा जो है, ये एक सोल्यूशन है। ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन फॉरवर्ड SCR ब्रिज इज ऑन। इसमें दो ब्रिज हैं, एक फॉरवर्ड SCR ब्रिज है और एक रिवर्स SCR ब्रिज है। फॉरवर्ड का मतलब है कि जब फॉरवर्ड नॉर्मल ऑपरेशन है और जब इसको रोकना है तो ये रिवर्स वाला चला देंगे, तो ये उसकी एनर्जी जो है वो वापस सोर्स में फेंक देगा। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन फॉरवर्ड SCR ब्रिज इज ऑन। Okay, during the normal operation forward SCR bridge is on, and during the braking operation reverse SCR bridge is on. It causes the reverse current flow in the armature of the DCM, जो DC motor है. This causes the torque of the armature to develop in the opposite direction. It counters forward torque of the motor, causing it to decelerate quickly. यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो जिसकी वजह से टॉर्क भी उल्टी डायरेक्शन में हो गया, तो जिसकी वजह से मोटर आपकी क्या हो जाएगी, डेसेलरेट होगी, उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो यह है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और ये इसका सर्किट देख लें, इसका सर्किट देखते हैं हम, ये सेट पॉइंट है ये स्पीड का। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फीडबैक आ रही है वो टैकोमीटर से आ रही है, और फिर उसके बाद ये एम्पलीफायर लगा हुआ है, कंट्रोलर, और फिर एक फॉरवर्ड SCR ब्रिज लगा हुआ है, और दूसरा ब्रिज कौन सा है इसका, रिवर्स SCR ब्रिज। ठीक है, ये इसका सर्किट है इसका, और ये भी सर्किट इसका शो कर रहा है। दोनों सर्किट्स बेसिकली इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, ये जेनेरिक से हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव थी उसकी हम बात करते हैं कि वेरिएबल, देखें आगे आ रहे हैं, मैं आपको, एक मोटर है ना, मोटर के लिए सबसे पहले चाहिए होता है स्टार्टर, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वो आगे आएगा अभी, जिसमें आप सिंपल स्टार्ट स्टॉप करते हैं, आपने PLC जब मैंने पढ़ाया आपको उसमें करवाया हुआ है। दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, जिसमें स्टार पे पहले मोटर चलती है रिड्यूस वोल्टेज पे, उसके बाद वो डेल्टा पे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो होते हैं स्टार्टर। उनका मकसद ये होता है कि मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है उसको कम करना, क्योंकि मोटर स्टार्ट में जब चलती है वो धक्का जिसको कहते हैं, वो बहुत करंट खींचती है, ट्रांसफार्मर्स बहुत करंट खींचते हैं। एक ट्रक अगर आपका रोड पे खड़ा हो, उसको अगर आपने लेके जाना है, उसको अगर आपने मूव करवाना है, तो शुरू में ठीक ठाक वो आपकी ताकत लेगा एनर्जी, लेकिन जब वो मूवमेंट में आ जाएगा फिर नहीं लेगा इतनी एनर्जी आपकी। इसको कहते हैं इनरश करंट या इनरश फिनोमिनन। तो जो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस, स्टार्टिंग करंट से बड़ा मसला पैदा होता है। जैसे हमारे पास ये होता था, ब्रेकर ट्रिप कर जाते थे हमारे, और इतना ह्यूज करंट आता था, ब्रेकर समय तक फॉल्ट आ गया, वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो हम इतना ह्यूज करंट स्टार्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टर से चलाते हैं। दूसरा फिर एक ऑप्शन होता है इसमें सॉफ्ट स्टार्टर, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके हम क्या करेंगे, वही वोल्टेज अल्फा जो एंगल है उससे कंट्रोल करके भी हम मोटर को आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन वो भी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक, वो भी आपकी स्टार्टर है बेसिकली। उसका मकसद क्या है, स्टार्टिंग करंट को कम करना। ड्राइव में क्या होता है, ड्राइव में आपको ये भी बेनिफिट मिलता है स्टार्टर वाला भी, क्योंकि ड्राइव में मोटर एकदम आपकी 0 से 1500 RPM नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है। ठीक है, तो ये आगे, और हम आगे जाके भी इस बात को डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये बेनिफिट मिल गया आपको, इनरश करंट कम हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या मिल गया, स्पीड कंट्रोल हो गई, आपके हाथ में स्पीड आ गई इसकी, आप अपनी मर्जी से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जो कि नॉर्मली इस तरह नहीं बताया जाता, वो है एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी सेविंग्स। जैसे आपके जो टेक्सटाइल के जो, अगर आप डिस्कस करें सेट्स, मैंने तो इंटरव्यूज़ किया एनर्जी ऑडिट वगैरह में, मैंने किए थे उधर NTU में जब मैं था, तो उसमें उनको बड़ी पसंद होती है, इन्वर्टर ला दो, मोटर लगे इन्वर्टर ला दो। भाई क्यों ला दो, उसकी वजह थी, उसको पैसे बचते थे इन्वर्टर से, उसका बिल कम होता था बिजली का। तो एक यहाँ पे थी, लोकल है, NTU के साथ ही है, निशात है आई थिंक, कौन सी है वो, उन्होंने बता रहे थे कि पहले हमारे 2 जनरेटर चलते थे सर, अब सिर्फ 1 जनरेटर चलता है। प्लांट चलता था, पहले 2 जनरेटर उनको चलाने पड़ते थे पैरेलल में लोड शेयरिंग के लिए। कहते हैं अब उन्होंने इतनी वो एनर्जी कंजर्वेशन की, इतना अपनी वो बिजली बचाई, फजूल जो वेस्ट है उसको ख़त्म किया,
कि उनका लोड कम हो गया, उनकी जो बिजली थी वो क्या होगी, कम हो गई, जिसकी वजह से अब उनका एक ही जनरेटर चलता है। देखो कितने, आपको समझ आ गई होगी बात की, ठीक है ना। तो उससे उसकी कितना मतलब, एक तो इंजन बंद हो गया उसका, एक ये अब एक ही इंजन उसका चल रहा है, इंजन के खर्चे कम हो गए, ठीक है, और उसकी उसकी कॉस्ट कितनी कम हो गई। तो इस तरह से फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई उसकी, जो इंजन में चला रहा है, अपना पावर हाउस चला रहा है, उनका अपना पावर हाउस था ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है। तो एनर्जी, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस, सारा आप पढ़ लीजिएगा, ये पेपर से मैंने किया था आपके लिए, इसमें डाला है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इज इनपुट करंट इज लेस देन द आउटपुट सिंस सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट, लोअर डिमांड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, पावर कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोटर स्पीड। ये पॉइंट असल में जो मोटर पावर खा रही है ना, वो अपनी स्पीड की पावर खा रही है। मतलब मोटर जो है वो 1500 आरपीएम पे चल रही है, और आपकी एक एप्लीकेशन को चला रही है आगे। उस मोटर को अगर आप हाफ स्पीड कर दोगे ना, तो उसकी वो कम पावर खाएगी। लेकिन इसमें भी दो कंडीशंस आती हैं कि जो आगे मोटर के साथ जो लोड लगा हुआ है वो उसकी टाइप क्या है, क्या वो वेरिएबल टॉर्क लोड है या कांस्टेंट टॉर्क लोड है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इम्प्रूव द पावर फैक्टर टू 0.9, पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाता है, और पे बैक विद इन 12 to 24 मंथ्स फॉर द रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन। यानी पे बैक पीरियड ये होता है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग इकोनॉमी में, कि जिसमें आपकी जो आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है वो आपको मिल जाती है, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ द लोड एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी सेविंग इज वेरिएबल टॉर्क एंड कांस्टेंट टॉर्क। तो वेरिएबल टॉर्क एंड कांस्टेंट टॉर्क, वीटी और सीटी। अच्छा, इसमें देखते हैं, पहले हम बात चलते हैं वेरिएबल टाइप टॉर्क टाइप लोड, जिसमें आपका अगर टॉर्क वेरी करता है तो स्पीड और टॉर्क का रिलेशन दिखाया हुआ है उसने वेरिएबल टॉर्क लोड का। तो इसमें आपके आता है कि एप्लीकेशंस लाइक फैंस फॉर एग्जांपल, इंड्यूस्ड ड्रॉप और फोर्स ड्रॉप। फैन असल में होता है इंड्यूस्ड ड्रॉप, जो आपकी एयर को सक करता है, और फोर्स ड्रॉप जो फोर्सफुली एयर को आपके फेंकता है, उसको कहते हैं फोर्स ड्रॉप। फैंस, प्राइमरी एयर फैंस, कूलिंग टावर फैंस, वेंटिलेशन फैंस, ड्रायर फैंस, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल्सो पम्प्स फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड वाटर पम्प्स, प्रेशर बूस्टिंग पम्प्स, कूलिंग टावर पम्प्स, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं इंडस्ट्री में, मैंने इन पे ऑलमोस्ट सब पे काम किया हुआ है। वेस्ट वाटर पम्प्स, ये आपका सीरप पम्प्स एक्सेट्रा, दीज आर द वेरिएबल टाइप लोड्स। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप स्पीड कम करोगे ना, तो इसमें 1/3 इफेक्ट, मतलब 3 गुना ज्यादा, 1/3 नहीं कहना चाहिए, 3 टाइम्स इफेक्ट आएगा। वो कैसे आएगा वो दिखाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो पावर निकलती है वो प्रोपोर्शनल निकलती है स्पीड क्यूब के। यानी अगर आप अपनी स्पीड को फॉर एग्जांपल हाफ कर दें, तो हाफ का क्यूब लें, क्या आता है 1/8, आपकी 8 गुना पावर कम हो जाएगी। तो ये कैसे ड्राइव हुआ है कि प्रेशर जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड फ्लो, इसको हम प्रेशर कहते हैं, जो कि क्या है बेसिकली पावर इज प्रेशर एंड फ्लो। जब P इक्वल टू VI होता है ना, या P इक्वल टू टॉ ओमेगा, तो जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, उसमें आमतौर पर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड फ्लो। प्रेशर इसमें क्या है वोल्टेज, और फ्लो क्या होता है करंट, ठीक है, वही VI वाला फॉर्मूला पावर का। और प्रेशर इसमें है प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्केयर, तो ऊपर इसको पुट कर दो, फ्लो होता है स्पीड, फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड प्रेशर इज स्पीड स्केयर। तो पावर इसमें आ गई प्रोपोर्शनल टू स्पीड क्यूब। तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू N1 क्यूब, P2 इज प्रोपोर्शनल टू N2 क्यूब, उसको डिवाइड कर लें तो यह फार्मूला आपके आ जाएगा P2 ओवर P1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 क्यूब, या P2 इज इक्वल टू P1 इंटू N2 ओवर N1 क्यूब। तो पहले अगर आपकी मोटर है 1400 अगर आपकी मोटर है 1440 1440 रेटेड उसके आरपीएम में, और उस मोटर को आप चलाते हैं रिड्यूस्ड स्पीड पे, यानी 1200 पे चलाते हैं अगर हम, तो आपको कितनी एनर्जी सेविंग मिलेगी, ये क्वेश्चन है। तो यहां से निकालें, P1 मोटर है 100 हॉर्स पावर की, यानी अगर आप उसको 1440 पे चलाएं तो वो 100 हॉर्स पावर लेती है, लेकिन अब आप उसको किस पे चला रहे हैं 1200 पे, तो कितनी अब पावर कितनी रह जाएगी देखें जरा। अच्छा, तो मोटर आपकी थी 1440 की, उसको आपने चलाया 1200 पे, तो हमने देखा कि अब मोटर की जो पावर है वो एक्चुअली 58 हॉर्स पावर आएगी, यानी 100 हॉर्स पावर की मोटर अब आपकी 58 वो ड्रॉ करेगी। तो आपकी सेविंग हो गई 42 हॉर्स पावर, ठीक है, 42 हॉर्स पावर। तो इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करें, और फिर आपको टाइम दिया होगा कि इतने आवर्स के लिए ये चल रही है, उसको फिर आवर से मल्टीप्लाई करें,
तो वो आपके बिजली के यूनिट निकलाएंगे जो आपने सेव किए हैं। फिर उसको यूनिट की जो कॉस्ट है उससे ज़रब दें तो वो आपकी सेविंग निकलाएगी। और आपको 1 साल का टाइम दिया होगा, तो 1 साल में यानी हर रोज़ वो इतने 10 घंटे चलती है, तो 10 आवर्स हो गए। उसको किलोवाट में करें तो आपके एक दिन के किलोवाट आवर निकल आएंगे। उसको ज़रब दे दें 365 के साथ, तो वो आपकी साल की एनर्जी सेविंग आ जाएगी। ये वर्किंग आप जॉब पे जाके भी करके दिखा सकते हैं। जो आपके उस वक्त के सीनियर्स होंगे उनको ये वर्किंग करके दिखाएं, एंड यू कैन ईजिली गेट प्रमोशन और गुड रेस बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज। या आपने पूरे प्लांट की वर्किंग करके उसको बताया कि सर यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह लगा दें अगर वैसे मोटर चल रही है आप इन्वर्टर प्रपोज करें और उसको बताएं। लेकिन ये जो इतनी ह्यूज जो एनर्जी सेव हो रही है ना, ये है आपकी वेरिएबल टॉर्क के लिए। अच्छा, अगर आपका ऐसा है लोड जिसका टॉर्क कांस्टेंट है, तो फिर क्यूब नहीं रहता, फिर वो जस्ट कांस्टेंट हो जाता है, जिसमें देखें कि मतलब क्यूब हट जाएगा इसमें कि P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी। आप कांस्टेंट पावर इसमें देखें आप, ये आपका क्या कांस्टेंट टॉर्क लोड है ना, तो इसमें पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी, ये फॉर्मूला होता है आपका पावर का, मैकेनिकल पावर। टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो पावर आपकी कांस्टेंट है 2 पाई एन टी। और P1 क्या आ जाएगा इसमें 2 पाई N1 टी, P2 क्या आ जाएगा 2 पाई N2 टी। उसको तकसीम करें इनको तो P1 और ये P2 ओवर P1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1। अब उसी मोटर को अब इस एप्लीकेशन पे चलाएं तो आप देखें कितनी एनर्जी सेव होती है। 1200 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाइड बाय 100, अब आ रही 84। अब डिफरेंस निकालें, तकरीबन 16 हॉर्स पावर, थोड़ा है, यानी एनर्जी अभी भी सेव हो रही है लेकिन थोड़ी एनर्जी सेव हो रही है। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें, फिर इसको डेली कितना चलाते हैं आप उससे ज़रब दें, फिर उसको 365 से ज़रब दें, तो 1 साल की आपके पास एनर्जी सेविंग आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से इसका हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड आपका क्या आता है, कांस्टेंट पावर लोड, वेरिएबल टॉर्क लोड, कांस्टेंट टॉर्क लोड, और थर्ड वन इज योर कांस्टेंट पावर लोड। तो कांस्टेंट पावर लोड तो नाम ही कांस्टेंट पावर है, तो उसको तो नहीं हम कुछ कर सकते। कांस्टेंट पावर में कोई एनर्जी सेविंग नहीं होगी क्योंकि वो है ही कांस्टेंट पावर लोड है। तो कांस्टेंट पावर टाइप लोड एप्लीकेशंस आर ब्लोअर मोटर, स्पिंडल मोटर, मिक्सर, दीज टाइप्स। इनमें नहीं होती, इनमें नहीं आपका होगा, इसमें नहीं आप कर सकते हैं आपकी जो है ना कि ये देखें एज इन कांस्टेंट पावर टाइप ऑफ लोड एप्लीकेशंस पावर इज कांस्टेंट, सो एनर्जी सेविंग इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज फाउंड दैट द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग वेरिएबल स्पीड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कैन सेव एनर्जी अकॉर्डिंग टू द affinity laws and equations. As from these results, a small reduction in the speed can save a large amount of energy. Apart from speed control and energy savings, the uses of variable frequency drives are soft start, reduction in starting current, and also reduced wear and tear. Also, a VFD fed induction motor is modeled using open loop and closed loop and simulated in MATLAB using MATLAB. तो ये हमने देखा कि इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपके जो ड्राइव्स के हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।